तो मसीह पे क्यों विश्वास करना है? पापों की क्षमा का मतलब क्या है? अनंत जीवन का मतलब क्या है? अगर पुनरुत्थान है ही नहीं तो हम मतलब इसी जीवन में आशा बनाए रखे हैं, आगे की आशा हमें कुछ नहीं है। आगे हमारा अंधेरा है, आगे क्या होगा पता नहीं, सिर्फ यही जीवन एक बचा हुआ है, आगे कुछ नहीं है। मानो अगर पुनरुत्थान है ही नहीं, तो ये पौलुस उनको बताना चाहते हैं और उनको ये साबित करना चाहते हैं कि पुनरुत्थान है। उनको ये साबित करना चाहते हैं कि पुनरुत्थान है। So Paul is trying to explain to them that resurrection is a very true fact, and it is a futuristic fact, and it is something which is every believer is going to experience. तो वर्स 20, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। So, but in fact, Christ has been raised from the dead. In fact, it's a fact, it's a historical fact. In fact, it cannot be changed. कोई उसे बदल नहीं सकता, अपनी डॉक्ट्रिन अपनी कोई उसे बदल नहीं सकता है। It's a fact. Christ has been raised from the dead. The first fruits has become the first fruits of those who have fallen asleep. मतलब जैसे मैं resurrection Sunday के दिन हमने वचन सुना था, आपको याद है कि नहीं? The dead, the place of the dead, Sheol, the place of the dead. So, among those who went to the place of the dead, nobody came back from there. They were all waiting for the resurrection. From Adam until the time of Jesus, everybody who left this earth went to the place of the dead, Sheol. They were waiting there. And there was only one person after all these years who is dead, went to Sheol, and Sheol could not hold him back, and he came back from Sheol and he rose again. That is our Lord Jesus Christ, and that is why Paul says he's like a first fruit among those who have fallen asleep. हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है एक पहला फल बन चुके हैं उन लोगों में से जो लोग, जितने लोग सो गए मतलब मर गए हैं, संसार को छोड़कर चले गए हैं। तो now Paul tells us that he makes a comparison between the first Adam and the second Adam. First Adam is our forefather, Adam and Eve. Adam disobeyed God and he brought death upon mankind. But Paul says over here, the second Adam, Jesus Christ, through him we receive life. Let's read verse 21. क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए भी पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। पॉल इज सो सर्टन। पॉल जो है इतना स्थिरता से इस विषय को कहते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से इस विषय को कहते हैं कि जैसे आदम के पाप की वजह से हम सबको मृत्यु दंड आया, वी ऑल एज एन एडम ऑल डाई, आदम में सब मरेंगे। आज हमें मरना है, एक ना एक दिन हमको संसार छोड़ना है। क्यों? Because from Adam, because of what Adam and Eve did, all human race has received the judgment. So as in Adam, all die, but in Christ, all shall be made alive. Now we need to be very careful here. All shall be made alive. यहाँ पे क्या कहता है? All shall be made alive. सब जिलाए जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है गलत शिक्षा को बना देते हैं। It's very, some people are so quick to pick up some scriptures and to twist them and to put a wrong teaching forward. I've heard certain people taken up this scripture and said all shall be made alive in Christ. That means all humanity. They interpret this verse in such a way, इस वचन को ऐसे बताते हैं कि all लिखा है ना, सब लिखा है। सब का मतलब है कि सब, सारे मानव जाति, सब लोग जिलाए जाएंगे। क्या इसका मतलब, वचन का वो मतलब है? नहीं। सब मतलब जितनों ने विश्वास किया है प्रभु यीशु का, क्योंकि 15 अध्याय कैसा शुरू होता है? विश्वास, जो गॉस्पेल, मतलब वो
वो एक मान लीजिए एक डोर है, गॉस्पेल इज लाइक एंट्री डोर, एंट्री गेट। ओनली व्हेन यू पास थ्रू दैट एंट्री गेट यू आर ऑन द अदर साइड, you are in the property of, you are in the inheritance of God, the premises of God, kingdom of God. तो गॉस्पेल एंट्री और मतलब यहाँ पर जो लोग उस गॉस्पेल जो दरवाजा है उससे गुजरे हैं उनके बारे में पौलुस कह रहा है, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया वो सारे लोग, वो सब लोग फिर से जिलाए जाएंगे, फिर से जिलाए जाएंगे। हालेलुया। So if you read from, I will quickly club the verses so we can save time. अगर हम लोग जो है verse 23 to 27 or 28 actually, 23 to 28 ये पैसेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार है लोगों को जिलाने के लिए, if you read in Matthew chapter, John chapter 6, John chapter 5, in the conversation which the Lord has with the Pharisees, the Lord says that as the Father has authority to give life, even so He has given authority to the Son to give life to as many as He wishes. And then the Lord also says, प्रभु कहते हैं कि जैसा पिता के पास अधिकार है जीवन देने के लिए, वैसा ही पिता ने वो अधिकार पुत्र को भी दिया है कि पुत्र भी जीवन दे सके। और उसके बाद प्रभु ये भी कहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा दिन आएगा जब मरे हुए लोग कब्र में प्रभु मेरी आवाज को सुनेंगे। The dead shall hear the voice of the Son of God and they will rise. The dead shall hear the voice of the Son of God and they will rise. Those who have done good to the resurrection of the righteous, those who have done evil to the resurrection of the wicked. So Jesus, as he said in John chapter 5, in the same way Paul is affirming the authority of Christ to raise those who are dead, those who have gone to Sheol, to bring them back. So he says that Christ is going to deliver the first fruits to the Father, and then is going to deliver the kingdom of God after he has destroyed every rule and every authority and power. For he must rule until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death. Jesus is going to restore everything. He is the one who is going to bring resurrection. As in John chapter 11, the Lord tells Martha, he says, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, yet he shall live. Hallelujah. Praise the Lord. So basically, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पौलुस जो है यहाँ पर पुनरुत्थान के विषय में हम लोगों को बता रहा है कि पुनरुत्थान सच है, पुनरुत्थान होने वाली एक घटना है, पुनरुत्थान की आशा हमें लगाए रखना है। आदम में हमें मृत्यु दंड मिला है, लेकिन मसीह यीशु में हम जिलाए जाएंगे। जिस प्रकार से मसीह यीशु शियोर में जाकर वहाँ से जिंदा हुए, फिर वो पिता के पास चले गए, उसी तरह हम भी जो है हम भी जिंदा होंगे, एक नए शरीर को, महिमा शरीर को पाएंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए पिता के पास रहेंगे। और ये काम कौन करेगा? यीशु मसीह जो हमको अपने पिता के राज्य में ले जाएगा। He will deliver us into the kingdom of his Father. पिता प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पिता के राज्य में हमें पहुंचाएगा, वो हमें ले जाएगा महिमा शरीर को देकर। That is resurrection. That is the hope with which we live. So by talking about this, Paul is saying that he is trying to answer, वो उनको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जो उस समय में कोरिन्थ की कलीसिया में कह रहे थे कि पुनरुत्थान नहीं है। हालेलुया। अभी आगे देखेंगे तो पौलुस कहता है कि verse 32, let's look at verse 32. यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाते जाएंगे तो आओ खा
खाए पिए क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। पौलुस अभी कहता है कि एफेसस में वो वन पशुओं से मतलब जंगली जानवर से 20 I fought with beasts. Paul says I fought with beasts. मैं जंगली जानवरों से मैं लड़ा। पौलुस कहता है मतलब क्या है? मतलब पौलुस कह रहा है कि जंगली जानवर मतलब एक्चुअल में जानवर से नहीं लड़ा, वो ऐसे लोगों को जो प्रभु के इस सुसमाचार को और इस पुनरुत्थान के विषय को अपोज कर रहे हैं, इस डॉक्ट्रिन को अपोज कर रहे हैं। पौलुस उनको जंगली जानवर से कंपेयर करते हैं और पॉल इज कंपेयरिंग दोज पीपल हु आर अपोजिंग दिस गॉस्पेल एज ही समराइजेस इन chapter 15. Those who are opposing this gospel and the fact of the resurrection, the sure fact of the resurrection, जो लोग इसके विरुद्ध आ रहे थे, पौलुस कहता है मैं उन लोगों को, पौलुस जंगली जानवर से तुलना करता है और पौलुस कहता है मैं उन लोगों से लड़ा और fought with them. You can see the zeal of Paul. पौलुस की zeal को हम देख सकते हैं यहाँ पर. Whenever there was some wrong teaching, the wrong doctrine, पौलुस चुप नहीं बैठता था जब कभी वहाँ पर कोई wrong teaching, wrong doctrine आता था. पौलुस चुप नहीं बैठता था. वो कहता है कि जंगली जानवर की तरह लोग बन गए, मेरे विरुद्ध आए, प्रचार के विरुद्ध, सुसमाचार के विरुद्ध, सच्चाई के विरुद्ध आए, लेकिन मैं चुप नहीं बैठा. I fought, मैं लड़ा, उनके विरुद्ध मैं लड़ा. आज अगर हमें प्रभु का एक अच्छा सैनिक बनना है, we also need to fight like Paul did, जैसा पौलुस ने किया. जो लोग गलत शिक्षा प्रचार करते हैं, हमें बस आजकल बहुत लोग कहते हैं इट्स ओके, वो लोग कर रहे हैं, प्रभु उनको देख लेगा. The Lord is watching, the Lord will take care of them. But why has He kept you then? You are the extended hand of the Lord. We have to, अगर ऐसा होता तो Paul would have said, I lead them to the Lord will take care. But rather Paul says over here, I fought. मैं लड़ा, मैं उनसे लड़ा. That means Paul हमसे कहते हैं कि if there is a wrong teaching, a wrong doctrine somewhere propagating, because a wrong doctrine is like leaven. जो wrong doctrine होता है वो ऐसे, वो जैसे कि हम आटे में मिला देते हैं, जो लीवन होता है उस तरीके से थोड़ा सा अगर हम लोग डाल दें तो क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरा फैल जाता है. Leaven, you put a little and yeast or leaven, you put a little in the flour and it's going to spread overnight into the whole thing. If you, the wrong doctrine has got that kind of characteristic. अब थोड़ा सा छोड़ दो, अभी हम सोचेंगे वहां पर रॉन्ग टीचिंग है, प्रभु देख लेगा. हमने उसको छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो फैल जाएगा, बहुत आत्माओं को वो नरक की ओर ले जाएगा और हम सब देखते, चुपचाप देखते रह जाएंगे. लेकिन पौलुस यहाँ पे कहता है मैं चुप नहीं था, मैं लड़ा. और 33 इसे धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते. मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ. अभी पौलुस को गुस्सा कर रहा है. पौलुस कहता है मैं तो लड़ रहा हूँ उन लोगों से जो गलत शिक्षा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप तो सोए हैं आत्मा में. You are sleeping. So he says in verse 34, wake up from your drunken stupor. Drunken stupor. पौलुस के शब्द को तो देखिए, मतलब कोई शराब, रात भर शराब पीकर जो सो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, वो कहाँ पर है, क्या उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है. उसका एग्जाम्पल पौलुस कह रहा है, कोरिन्थ की कलीसियाओं से कहता है, लोगों से कहता है, आप उस तरीके से सो गए. कोई आता है, गलत शिक्षा आपको देता है, चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है. तो पौलुस कहता है कि wake up, do not be deceived. धोखा न खाओ. बुरी संगति, bad company ruins good morals. If we partner with somebody who is not standing on the word of God, who is not following the word of God as the word of God says. So Paul says over here, there is a possibility that हम लोग
that we might become like them. अगर कोई है जो प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, सही डॉक्ट्रिन में नहीं चल रहा है, हमें क्या करना है? उनको प्रेम से बताना है, ना कि हमें उनके साथ में मिलकर वो जो विश्वास करे उसके साथ में हमें चलना है, ये नहीं करना है। क्योंकि पौलुस कहता है कि बुरी संगति से क्या होगा? अच्छा चरित्र भी बिगड़ जाएगा। और इसीलिए पौलुस कहते हैं, वेक अप फ्रॉम योर drunken stupor, as is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. पौलुस कहता है कि उठ जाओ, जाग जाओ, गलत शिक्षा जो आते हैं बताते हैं उन पर विश्वास मत करो, वेक अप। और पौलुस यहाँ तक कहते हैं कि आप में से थोड़े लोग अभी तक प्रभु को जानते ही नहीं, for some have no knowledge of God। आप सोचते होंगे कि मैं प्रभु को जानता हूँ, लेकिन जब आप गलत शिक्षा में जा रहे, अभी तक आप प्रभु को नहीं जानते हैं। I say this to your shame. Paul is very harsh when he has to get harsh. जब सख्त होकर बताना है तो पौलुस सख्त होकर बताते हैं। जब सही शिक्षा और गलत शिक्षा का विषय आता है, बार बार हम वचनों में देखते हैं पौलुस सख्त होकर ही बताते हैं। और यहाँ पर पुनरुत्थान के विषय में पौलुस सख्त होकर बता रहे हैं। और अभी वो 35 में, if you look at verse 35, now he is trying to explain to them in a very different sense about resurrection. पहले तो उन्होंने कहा कि resurrection आप कैसे कह सकते नहीं है? resurrection है, अगर नहीं है तो मसीह भी नहीं जिंदा हुआ, अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो हम पापों में अभी तक मरे हुए हैं, जिंदा नहीं हुए, हम फिर से पुनरुत्थान नहीं होगा, हमें अनंत काल की आशा नहीं है। ये सारी बातों को बताकर आप जो गलत शिक्षा आपको दे रहे हैं, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप लड़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे, आप सोए हुए जाग जाओ, ये बता कर अभी पौलुस जो है उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पुनरुत्थान नेचुरल थिंग्स, हमारे इर्द गिर्द के थिंग्स विच आर अराउंड अस, व्हिच वी सी एवरी डे, ऐसे इर्द गिर्द के चीज़ों को देखकर पुनरुत्थान को एक एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण देकर बताना चाहते हैं। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स दैट पॉल इज गिविंग? वर्स 35। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे कैसे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, you foolish person, Paul says, what you sow does not come to life unless it dies. And what you sow is not the body that is to be, but a bare kernel, perhaps of wheat or of some other grain. But God gives it a body as He has chosen, and to each kind of seed its own body. तो पौलुस कहते हैं कि जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का दाना है। पॉल इज टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ सीड, दाना जो बीज होता है उसका उदाहरण पॉलुस लेते हैं। जब हम बीज को जमीन में गाड़ते हैं, जमीन में हम लोग किसी बीज को गाड़ते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि बीज के ऊपर बीज आएगा। हम किस आशा से गाड़ते हैं कि उस बीज जिस पेड़ का है वो पेड़ उस बीज में से निकलेगा। जो बीज का आकार, बीज का शेप अलग होता है, लेकिन उसके अंदर से जो पेड़ निकलेगा उसका आकार, उसका शेप अलग होता है। पौलुस यहाँ साफ रीति से कह रहा है कि वो आकार उसको कौन देता है? प्रभु देता है। और क्या समझना है? Very clearly Paul is explaining to us with an example of seeds, germination of seeds. जो बीज हम बोते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, साफ रीति से बता रहा है कि हम एक शरीर में बोए जाएंगे, मरे हुए से दूसरे नए शरीर में, different body altogether, glorious body, just like Christ received, we will resurrect. Just like a seed is put into the soil, it dies, and then it comes back to life with a different body altogether. Hallelujah. That is how it is going to be with us. And moving ahead, Paul just talks about the different types of bodies, heavenly bodies, bodies of animals and plants and all the things. और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो पौलुस जो है बताते हैं अलग अलग तरीके के जो है शरीर के विषय में बताते हैं कि जो है if you look at the heavens, the stars, they are different bodies. If you look at the plants, they have a different body. If you look at the
animals, they have different body. So to each, God is giving them their own unique bodies. In the same way, God will decide what kind of heavenly body you and I will have. उसी तरीके से जैसे जीव जंतुओं का अलग शरीर है, चांद तारों का रूप अलग है, पेड़ जो है होते जो छोटे पौधे होते हैं उसका रूप अलग है, तो ये सारी चीज़ों को अपना अपना रूप परमेश्वर दे रहा है। उसी तरीके से हम जब पुनरुत्थान हो जाएंगे, हमें कौन सा रूप मिलेगा, वो प्रभु तैयार करेगा। हालेलुया, प्रभु तैयार करेगा। Verse 44, let's jump on to verse 44. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. If there is a natural body, there is also a spiritual body. Hallelujah, praise the Lord. So now Paul talks about how we are going to be raised. We will be sown as a natural body and we will be resurrected as a spiritual body. हमारा शारीरिक शरीर जैसा एक बीज होता है, it is sown and it dies and then a plant comes out of it, completely different body, new life. So if you can understand that, उसको अगर आप लोग समझ रहे हैं, जैसे बीज बोया जाता है फिर मर जाता है, उस बीज में से एक नया जीवन, एक नया पौधा निकलता है, कंप्लीट डिफरेंट, पूरा दूसरा शरीर, नया जीवन। उसको अगर हम लोग समझ लें तो हम पुनरुत्थान को भी हम समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एंड टॉकिंग सो मच इन डिटेल अबाउट रिजरेक्शन, और पुनरुत्थान के बारे में इतने गहराई से समझाने के बाद में पौलुस देखिए यहाँ पर, दिस इज द ओनली अदर प्लेस वेयर पॉल टॉक्स अबाउट रैप्चर। पहली थिस्सलुनीके की पत्रिका में पौलुस रैप्चर के बारे में बताते हैं, और उसके अलावा ये और एक जगह है जहाँ पर पौलुस रैप्चर के बारे में बताते हैं। Verse 51, Behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall all be changed. Hallelujah. Praise the Lord. So we have started with the Gospel, chapter 15. Paul talks about the Gospel on which we need to stand, which we heard, which we received, and on which we need to hold fast and stand. 15 अध्याय अगर आप लोग समरी देख लें तो पहला जो है सुसमाचार, जो हमने सुना है, जो ग्रहण किया, जिसमें हमें स्थिर रहना है। उसका जो सुसमाचार में, उसके बाद में इम्पोर्टेंट विषय पुनरुत्थान। कैसे थोड़े लोग कह रहे थे कि पुनरुत्थान नहीं है, so he explains what is resurrection, and then he gives examples for them to understand resurrection. उसके बाद में he tells them a mystery, लास्ट में जो है वो उनको एक रहस्य बताते हैं, and that mystery is of rapture. वो mystery जो है rapture का mystery है। Hallelujah. So in concluding verses of chapter 15 we can see that Paul says that Jesus has destroyed death once and for all. मृत्यु को जो है प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। Jesus has made an end of death by his cross, burial and resurrection. Jesus has defeated death completely. मृत्यु को यीशु ने, प्रभु ने पूरी तरह से हरा दिया, और क्योंकि प्रभु यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है, आज आपको और मुझे मृत्यु के विषय में डरने की ज़रूरत नहीं है। संसार के लोगों को पता नहीं है कि आज वो मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनसे क्या होगा, लेकिन जो यीशु पर विश्वास करते हैं, आपको और मुझे मृत्यु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा शरीर एज अ नेचुरल बॉडी एक शारीरिक देह की तरह बोया जाएगा और एक आत्मिक देह की तरह उठाया जाएगा। We will be sown a natural body and we will resurrect as a spiritual body. Resurrection, something we look forward to as a Christian. Resurrection जो है, पुनरुत्थान जो है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी हर दिन आशा बनाए रखते हैं हम, उसको हम आगे हमारे विश्वास में देखते हैं, उसके साथ हम
चलते हैं। Hallelujah. Now I'll just take the liberty of 5 more minutes and finish with chapter 16 क्योंकि almost खत्म हो चुका है। Chapter 16, you can see the opening verses. Paul talks about the collection for the saints. जैसा कि पौलुस जो है 16वें अध्याय में यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यरूशलेम में जो गरीब भाई बहन है, विश्वासी भाई बहन, उन तक कुछ मदद पहुंचाए। तो नाउ पॉल इज इन द जॉब ऑफ अ टास्क ऑफ कलेक्टिंग ऑफरिंग्स। पौलुस जो है हर एक कलीसिया में जाकर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो सारे जो दान है वो यरूशलेम के जो गरीब तकलीफ में जो भाई बहन है उन तक पहुंचा सके। तो अभी इन चैप्टर 16 is all about final instructions. Chapter 16, no doctrines, only final instructions. So we can safely conclude with chapter 16 because we don't have to go deep. It is just final instructions. So you see, first he talks about, सबसे पहले जो है पौलुस कहते हैं कि now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do on the first day of every week. Each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. And when I arrive, I will send those whom you accredit by letter to carry your gift to Jerusalem. If it seems advisable that I should go also, they will accompany me. तो यहाँ पर देखिए पौलुस फाइनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कलेक्शन जो है एवरी संडे थोड़ा थोड़ा निकाल के आप रखिए, जो भी आपकी कमाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के रखिए। फाइनली व्हेन आई कम I will collect the offering, or on behalf of me somebody will come, they will collect the offering and they will carry it to Jerusalem, to the poor brothers. उसके बाद में Paul writes about his intentions. I will visit you after passing through Macedonia. So he is telling them that I will visit you. And then he says, oh, Timothy is also coming to see you, verse 10. Verse 10. So he says that put him at ease, मतलब उसका कदर करो, मतलब तिमोथी भी तुमसे मिलने आ रहा है और उसका ख्याल करो प्रभु में। So verse 10 and 11 he talks about Timothy. Verse 12 he talks about Apollos. Yes. That's it. So basically it's all final instructions. Verse 20, all the brothers send you greetings. Greet one another with a holy kiss. Verse 21, I, Paul, write this greeting with my own hand. 22, if anyone has no love for the Lord, let him be accursed. Our Lord come. The grace of the Lord Jesus be with you. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. So it's been a long while. We have taken almost so many months. Lockdown came in between. But finally we have finished with 1 Corinthians. And I hope that we have understood and learned a lot of things. पहले कुरिन्थियों की किताब को हमने ख़त्म किया है, बहुत लंबा समय हमने सीखा है, लेकिन बहुत गहरे बातें, विश्वास की बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने सीखा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे और उसको आप दोबारा भी पढ़िए अपनी फ्री टाइम में। फर्स्ट Corinthians, read it again, and if you have made the wonderful notes, go through your notes again and again and again, so that you become strong in the right doctrines. And let's be like Paul, Paulus की तरह बनेंगे. Let's fight the wild beasts. Let's not be quiet. जो जंगली जानवर यानी जो लोग गलत शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, उनको हम उनसे लड़ना है। सही शिक्षा लड़ना मतलब ऐसे जाके उनको मार के आना नहीं है। Ephesians chapter 6, our fight is not against flesh and blood, but against spiritual forces of darkness. With prayer and with the word of God, by preaching the right doctrine, we can silence the wrong doctrine. Simple method. You preach what is right, silent, wrong doctrine is already silenced. You light a candle in the dark, darkness is already gone. Nothing great to do. Just simple task of lighting a candle. Open your Bible, preach what is right, and the wrong doctrine is already silenced. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करेंगे और उसके साथ साथ वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। समय भी हो गया है, तो there are a couple of prayer points. We will all pray together and we will conclude today. Let's continue to pray for Kishore brother for his complete
healing, that he regain his strength. Let's continue.